Okay, Dev, see here. As we have learned square and square numbers, right? Square and square root. है ना? As we have already learned square and square root. Okay. Now today we will learn a new pattern in the number system. Okay. We will take some number of dots and try to arrange it in a triangular form. Okay. As we have arranged in the when we were learning in square number, we arrange the dots in square, right? But here we will take some number of dots and try to arrange them in triangular form. Okay, we will start with 1. We will start with 1. Is it clear? Now we will take 2 dots in base and 1 dots in above. So how many dots you can see here? How many dots you can see here? You are unmute. You are on mute. Please keep yourself unmute. Okay. 3 dots. Yeah. How many dots? 3 dots. Okay. See here, Dev. Yes, sir. Now let's see here. So as first we take 1 dots, है ना? In second, Yes, sir. we keep 2 dots in base and 1 dot on top, right? So how many dots you can see here? Sir, 3 dots. 3 dots, and it will make a which pattern? This is Sir, triangle. triangular shape. This make triangular shape, right? Triangular shape. Yes, sir. Now take 3 dots in base. How many dots in base? 3 dots. 3 dots in base. 2 dots will be on top of them and 1 will be in most top. Okay, Yes. so how many dots you can see here? Sir, 6 dots, sir. How is it? 3 and 3 6. Okay, now keep 4 dots in base. ठीक है, 1 2 3 4. Above it, how many dots we have to take? Above it, in base it is 4. In base it is 4. So above it, it will be 3 dots. है ना? 3 dots. And above 3 dots, how many dots? It will be 2 dots. How many dots? 2 dots. 2 dots. And at the top, it will be 1 dots. Right? How many dots at in the top? At Sir, top, 1 dot. 1 dot. So how many dots you can see here in this shape? How many dots? 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 1 on top, that is 10. 10. How many dots you can see here? It is 10. Now let's do for next. As here in base we keep 4 dots. Here in base 1 dot. Here in base 2 dots. In base 3 dot. In base 4 dot. So did you notice what I am doing? I am increasing by 1 dot in base, है ना? And it will be automatically increase 1 dot on its top, है ना? When we will go on the top, its 1 dot will increase. Okay? So as you can see here, I take 4 dots on the base. So how many dots in the next pattern, in the next one? How many dots in the base? It will be how many dots? 4. As here I keep 4, है ना? I have done already for 4. Now it will be, the next will be how many dots in the base? Sir. यहाँ देखिए, 40. बात को समझिए देव, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ, बेस में यहाँ कितने डॉट्स हैं? बेस में कितने डॉट दिख रहे हैं? 1. यहाँ बेस में कितने डॉट हैं? 2. यहाँ बेस में कितने डॉट हैं? 3. यहाँ बेस में कितने डॉट हैं? 4. नेक्स्ट बेस में कितने डॉट होंगे? 5. यही पूछ रहा हूँ मैं, समझ में आया? कितने डॉट्स होंगे नेक्स्ट? नेक्स्ट इट विल बी 5 डॉट्स ऑन बेस, राइट? 1 2 3 4 and 5,
है कि नहीं? तो यहाँ नोटिस कर रहे हैं, कुछ आपने नोटिस किया कि मैं बेस में क्या कर रहा हूँ, एक एक डॉट को बढ़ाते जा रहा हूँ। मैं बेस में क्या कर रहा हूँ, एक एक डॉट को बढ़ाते जा रहा हूँ, जिस कारण से क्या हो रहा है कि आपको उसके टॉप में एक एक डॉट्स बढ़ते हुए दिख रहे होंगे, राइट, है ना? अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो एक भी डॉट नहीं था बेस के टॉप में। यहाँ पे देखेंगे एक डॉट आया, यहाँ देखेंगे 2 डॉट्स आया, यहाँ देखेंगे 3 डॉट्स आया। इट्स मीन यहाँ कितने डॉट्स आएंगे, 4 डॉट्स आएंगे, ठीक है? तभी नहीं एक ट्रायंगुलर फॉर्म बनाएगा, 1 2 3 4। अच्छा, 4 के ऊपर कितने डॉट्स आ जाएंगे, एक एक करके हमें कम करते जाना है, ठीक है? एक एक करके डिक्रीज करना है, ठीक है? तो 4 है तो एक कम कर दिए, 3 डॉट्स आएंगे। कितने डॉट्स आएंगे, 3 डॉट्स। फिर उसके ऊपर कितने डॉट आ जाएंगे, सर 3 डॉट्स। 3 डॉट्स तो मैंने कर दिया। 3 के ऊपर कितने डॉट आएंगे, 2 डॉट्स। और सबसे टॉप में कितना डॉट हो जाएगा, 1 डॉट। टोटल कितना हो गया, कैन यू काउंट इट, 5 4 9 9 3 12 12 to 14 14 और 1 15। तो टोटल कितने डॉट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, सर 15। कितने डॉट्स दिखे, तो यहाँ हमें नंबर ऑफ डॉट्स कितना लगा, 15 लगा। क्लियर है? अब हम यहाँ पे पैटर्न में आते हैं। जब आप इसको देखिएगा, किधर साइड से भी आप इसको काउंट कीजिए, ठीक है? आप किधर साइड भी काउंट करेंगे, चाहे मैं बेस इस इधर मानूँ तो भी 2 डॉट्स हमको दिख रहे हैं, चाहे मैं बेस इधर मानूँ लेफ़्ट साइड से तो भी बेस में 2 डॉट्स हैं, चाहे मैं बेस इधर से मानूँ तो भी आपको 2 डॉट्स दिखेंगे। अब इसमें आ जाइए, बेस में 3 डॉट्स हैं। अगर इधर से मैं बेस मानूँ तो इधर भी 3 डॉट्स हैं, इसको मैं बेस मानूँ तो इधर भी 3 डॉट्स है, 1 2 3। इसमें आ जाइए, अगर इसमें हम बॉटम को अगर हम बेस मानते हैं तो 4 डॉट्स हैं, इधर देखिए 4 डॉट्स हैं। अगर लेफ़्ट साइड वाले को हम बेस मानते हैं तो इधर भी 4 डॉट्स है, 1 2 3 4। राइट साइड में अगर हम बेस मान रहे हैं तो इधर भी आपको 4 डॉट्स देखने को मिल रहा है। क्लियर है ना? ओके। इसमें देखिएगा, जब हम बेस को देख रहे हैं, हाउ मेनी डॉट्स आर इन बेस इन द बॉटम, सबसे नीचे में कितने आपको बेस में कितने डॉट्स दिख रहे हैं, 5। अगर लेफ्ट साइड से हम देखेंगे तो भी कितने डॉट्स हैं, जस्ट काउंट इट, 1 2 3 4 5। कितने डॉट्स दिख रहे हैं अगर लेफ्ट साइड से हम बेस मान रहे हैं तो 5। अगर राइट साइड से हम बेस मानते हैं, राइट साइड से दिस वन, दिस साइड, तो इधर से भी आपको कितने डॉट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। कितने डॉट्स दिख रहे हैं, 5। तो आप कहने का मतलब यहाँ एक चीज़ नोटिस कीजिए कि आप किधर साइड से भी, चाहे बॉटम से, लेफ्ट साइड या राइट साइड, किसी भी फिगर में काउंट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डॉट्स उस पार्टिकुलर फिगर के लिए क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्या आ रहा है, वो सेम आ रहा है। इधर भी 5 डॉट्स हैं, इधर भी 5 डॉट्स हैं, इधर भी 5 है, इधर 4 4 4 3 3 3 2 2 2। क्लियर है? ठीक ना? तो यहाँ से आपको ये कैसा ट्रायंगल ऑब्जर्व हो रहा है बताइए, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके ऑल 3 साइड्स आर इक्वल हैं। ऑल 3 साइड्स क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बताइए, इक्वल हो रहे हैं। तो ये कैसा ट्रायंगल बना, विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस, दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता था, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या बना रहा है आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या देखने को मिल रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने नंबर ऑफ डॉट्स से देखने को मिला, तो 1 3 6 10 एंड 15। 1 से स्टार्ट किए थे, है कि नहीं, 1 3 6 10 15 एंड इट विल कंटिन्यू लाइक दिस टिल इन्फिनिटी। ठीक ना? क्लियर है? तो इस तरह का जो नंबर आया, क्या नंबर आया, 1 3 6 10 15 डॉट 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 टिल इन्फिनिटी। इस तरह हम कंटिन्यू करेंगे, आर कॉल्ड। इस तरह के नंबर को हम क्या बोलेंगे बताइए, क्या ट्रायंगल, क्या शेप दिख रहा है, किसका शेप दिख रहा है,
सर ट्रायंगल का शेप। ट्रायंगल का शेप दिख रहा है, तो क्या कहलाएंगे ये? कौन सा नंबर कहलाएंगे बताइए? सर कैसे? जैसा शेप है वैसा ही इसका नाम होगा, तो किस टाइप के नंबर्स हो जाएंगे? कैसा ये दिख रहा है, किस फॉर्म में दिख रहा है? शेप क्या दिख रहा है, शेप क्या बन रहा है? ट्रायंगल। ट्रायंगल। तो न कौन से नंबर ये कहलाएंगे? जैसे स्क्वायर बन रहा था तो स्क्वायर नंबर कहलाया, तो यहाँ ट्रायंगल बन रहा है तो कौन सा नंबर कहलाएगा? सर ट्रायंगल। ट्रायंगुलर नंबर। वेरी गुड। क्या कहलाएगा ये? ट्रायंगल नंबर। ट्रायंगुलर नंबर्स। ठीक है, क्या कहलाएंगे ये? ट्रायंगुलर नंबर्स। समझ में आया? तो ये ट्रायंगुलर नंबर्स के डॉट पैटर्न हो गए। क्या हो गए ये? ट्रायंगुलर नंबर्स के डॉट पैटर्न। ठीक है, कि जब आप ट्रायंगुलर नंबर्स को 1 3 6 10 ये नंबर से डॉट पैटर्न में जब आप इसको सजाइएगा ट्रायंगल के फॉर्म में, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। कैसा ट्रायंगल बनाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, और इसी कारण से हम इसको नाम देते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। ठीक है, क्लियर है? कि व्हेन वी विल अरेंज द ट्रायंगुलर नंबर्स in a dot pattern or in a dot form, then it will make a equilateral triangle. Okay, so they are known as triangular numbers. क्या कहलाते हैं? ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स। क्लियर है? अब sir. ट्रायंगुलर नंबर्स अगर आपको बनाना है या फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? कि बेस में पहले 1 डॉट्स। वॉशरूम जाके आऊं सर। ठीक है, ठीक, जल्दी आइए। श्योर। चलिए देखिएगा इधर देव। तो ये समझ में आए ये किस तरह के नंबर्स कहलाएंगे? यू आर ऑन म्यूट। मैंने आपको पहले ही बोला कि अपने आप को अनम्यूट में करके रखिएगा। कीप योर सेल्फ अनम्यूट, म्यूट में मत डालिए उसे। ठीक है? यस सर। हाँ, यस सर। क्योंकि मैं कब क्या क्वेश्चन पूछूंगा बार बार बीच में, तो आप बार बार म्यूट अनम्यूट ही करते रहिएगा क्या, इसलिए उसे अनम्यूट करके ही छोड़ दीजिए। ठीक है, म्यूट मत किया कीजिए। क्लियर है? चलिए इधर देखिएगा। तो ये सारे नंबर्स कैसे नंबर्स कहलाएंगे? सर ट्रायंगुलर नंबर्स कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? अगर आपसे रीजन पूछा जाए कि व्हाई ट्रायंगुलर नंबर्स आर कॉल्ड एज ट्रायंगुलर, तो क्या कहिएगा बताइए? बिकॉज जैसा कि हमने स्क्वायर में भी पढ़ा था ना, कि वैन स्क्वायर में पढ़ा था ना, वैन वी विल अरेंज the square numbers in dot pattern they will form square, right? So similarly यहाँ हम बोलेंगे कि when we will arrange triangular numbers in dot pattern they will form an equilateral triangle. क्लियर है? कहने का मतलब कि जैसा हमने स्क्वायर में पढ़ा था कि जब स्क्वायर नंबर्स को डॉट पैटर्न में अरेंज करेंगे तो वो एक स्क्वायर बनाएगा, ठीक उसी तरह जब ट्रायंगुलर नंबर को हम डॉट पैटर्न में अरेंज करेंगे तो वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। क्लियर है? और इसी कारण से ट्रायंगुलर नंबर्स आर कॉल्ड एज ट्रायंगुलर। ठीक ना? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रायंगुलर नंबर आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर आपको ट्रायंगुलर नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पहला तो तरीका क्या है? पहला वे है कि या बेस में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके कंसेक्यूटिव नंबर्स में उसको लेते जाइए। ठीक है, बेस में कंसेक्यूटिव काउंटिंग नंबर्स रखते जाएंगे और उसके ऊपर एक एक करके नंबर सजाते जाएंगे। पहले बेस में 1 रखें, देन बेस में 2 रखें, फिर 3 रख के सजाएं, फिर 4 रख के सजा रहे हैं, फिर 5 रख के सजा रहे हैं, है कि नहीं? तो नेक्स्ट नंबर जो होगा उसमें बेस में हम क्या रखेंगे, कितने डॉट्स रखेंगे बताइए? नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर निकालने के लिए बेस में कितने डॉट्स रखेंगे? बोलिए जल्दी। यस। अभी नोट डाउन मत कीजिए देव, मैं आपको समय दूंगा नोट डाउन करने के लिए। तो इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए कि मैंने अब हम सीख रहे हैं ट्रायंगुलर नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ठीक ना? तो पहले क्या करेंगे, बेस में 1 रखें, बेस में 2 रखें, बेस में 3 रखें, नेक्स्ट 4 रखेंगे, नेक्स्ट 5 रख करके एक के ऊपर एक
कम करते जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ डॉट्स क्या करेंगे, एक के ऊपर एक कम करते जाएंगे। तो जैसा कि पहले यहाँ हम बेस में 1 डॉट रखें, बेस में 2 डॉट्स, बेस में 3 डॉट, बेस में 4 डॉट, बेस में 5 डॉट, तो नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर के लिए बेस में कितने डॉट होंगे? नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर के लिए बेस में कितने डॉट रखेंगे? 6 डॉट। देखिए अगर हम बेस में 6 डॉट रखते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है? तो इसके ऊपर क्या करेंगे, -1 करके नंबर ऑफ डॉट्स रखेंगे। यहाँ नंबर ऑफ डॉट्स 6 है, तो इसके ऊपर नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो जाएंगे बताइए उसके ऊपर? 5। तो लिखिए 1 2 3 4 5, इसके ऊपर नंबर ऑफ डॉट्स कितने होंगे? 4। 1 2 3 4, इसके ऊपर कितने हो जाएंगे? 4 के ऊपर 4 - 1 क्या होता है? 3। तो 1 2 3, इसके ऊपर कितने डॉट्स होंगे? 2। और एट द टॉप में कितने डॉट्स हो जाएंगे? 1। ये अब आपको काउंट कीजिए टोटल कितने नंबर हुए हैं, टोटल कितना नंबर ऑफ डॉट्स हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो कितने डॉट्स मिले आपको टोटल? 21। तो नेक्स्ट अगर हम 15 के बाद ट्रायंगुलर नंबर कौन सा होगा, तो बोलेंगे आफ्टर 15 नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर इज 21। नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर क्या हो गया? 21। क्लियर है? ठीक ना। इसके बाद का फिर आप निकाल सकते हो, उसके लिए हम बेस में कितना डॉट्स रखेंगे? अगर इसके बाद का हमको निकालना है तो बताइए मुझे जल्दी से। यहाँ हमने बेस में 6 डॉट्स रखा, तो अब इसके बाद वाला में कितने, बेस में कितने डॉट्स रखेंगे? 7 डॉट्स, और ऐसे कर करके निकालेंगे। क्लियर है? तो आपको इसके बाद के लिए 2 मोर ट्रायंगुलर नंबर्स का करके दिखाना है, ठीक है। डॉट पैटर्न 2 मोर ट्रायंगुलर नंबर्स का करना है, ठीक है। पहला तो ये तरीका हो गया। हाँ, 21 के बाद 2 ठो और कौन ट्रायंगुलर नंबर होगा, ठीक है। तो एक के लिए बेस में 7 डॉट्स रख लेंगे और दूसरे के लिए बेस में फिर कितना डॉट रखेंगे? 8 डॉट्स, और वैसे कम करते जाएंगे, है ना, एक एक करके कम करके ऊपर टॉप की तरफ जाएंगे, और फिर लास्ट में पूरे डॉट्स को काउंट कर देंगे, पता चल जाएगा कि नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर क्या है। तो ये तो एक मेथड हो गया हमारा टू फाइंड द ट्रायंगुलर नंबर। नाउ द अनदर इज द वेरी इजी एंड ट्रिकी मेथड, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक मेथड टू फाइंड द ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है, करना क्या होगा आपको उसके लिए, सिंपल एक ऐसे हम डायग्राम बना लेंगे। क्लियर है? उसके बाद हम क्या करेंगे कि सबसे टॉप में 1 रखेंगे, सबसे टॉप में क्या रखेंगे? 1। देन लेफ्ट साइड आएंगे, रखेंगे 2। बीच में क्या करेंगे, इस बार कुछ नहीं रखेंगे, फर्स्ट हमें स्किप करना है। इन द मिडिल हियर हो गया 3, ठीक है। अब क्या होगा, लेफ्ट साइड में 4, बीच में यहाँ कुछ नहीं था तो अभी रखेंगे 1 डिजिट। वी हैव टू कीप ओनली 1 डिजिट और 1 नंबर इन द मिडिल, ओके। 5 देन 6। अब हम यहाँ करेंगे 7। अभी हमने यहाँ देखिए बीच में सबसे पहले कोई भी डिजिट नहीं रखा, नेक्स्ट हमने 1 डिजिट रखा, है ना। उसके बाद हमने टोटल 2 डिजिट्स रखेंगे, 2 अलग अलग नंबर रखेंगे, 2 डिफरेंट नंबर्स। 7 तो यहाँ लिखेंगे 8 एंड 9, देन यहाँ हो जाएगा 10, फिर यहाँ लिखेंगे 11। अभी देखिए हमने बीच में कितने नंबर लिखा है, बीच में टोटल कितना नंबर लिखा मैंने? 2 नंबर। इसके बाद 3 नंबर लिखेंगे, कितना नंबर लिखेंगे टोटल? 3 नंबर। तो A11 के बाद क्या हो गया, 12 13 एंड 14, तो 14 यहाँ तक। अब आ जाएगा यहाँ 15। क्लियर है? ठीक ना। इसके बाद क्या करेंगे, 16, यहाँ हो गया 16। अब बीच में कितने नंबर लिखेंगे? 17 18 19, ये तो 3 ही नंबर हुआ। हमने ऊपर 3 नंबर लिख दिया है, तो अभी कितना नंबर लिखना होगा? नाउ दिस टाइम वी हैव टू राइट 4 नंबर्स, 4 नंबर लिखना होगा, है ना। ऐसे करके इंक्रीज करते जाएंगे और नेक्स्ट नंबर फिर इधर हो जाएगा 21। तो आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ 1 से ले करके ये जो 3 6 10 21, मतलब राइट साइड में जो नंबर आपको दिख रहे हैं
वो कहीं ना कहीं ट्रायंगुलर नंबर्स आ रहे हैं। क्लियर है? तो ये सबसे इजी ट्रिक हो गया टू फाइंड द ट्रायंगुलर नंबर। अगर आपको ट्रायंगुलर नंबर फाइंड करना है, बताना है कि 15 के बाद कौन सा ट्रायंगुलर नंबर होगा, 21 के बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, तो आप इस ट्रिक के थ्रू ट्रायंगुलर नंबर निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? ओके। सर सर अगर ये ट्रिक मतलब अगर ये ट्रिक कंपलसरी है कि हम ये दूसरे डॉट ट्रिक भी use डॉट ट्रिक भी कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा सही लगे। डॉट ट्रिक में क्या है, थोड़ा टाइम टेकन है ना, टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि डॉट्स बनाइए, काउंट कीजिए, टाइम टेकन है और कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी हो सकता है। अगर काउंटिंग में ज़रा सा आपको आगे पीछे हुआ, मिस्टेक हुआ, तो आपका नंबर रॉन्ग हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं होगा, सिंपल है। 2 स्लोप्स बनाइए, काउंटिंग ऊपर से स्टार्ट कीजिए और एक बार राइट लेफ्ट राइट, ठीक है। नंबर लिख दिए, बीच में इस बार नंबर कुछ नहीं लिखेंगे, पहला बार में बीच में नंबर को स्किप करेंगे। देन 4, बीच में ओनली 1 नंबर रखेंगे। 6 7, बीच में अब 2 नंबर्स रखेंगे। देख रहे हैं, एक एक करके इंक्रीज करते जा रहे हैं। पहले एक भी नहीं था नंबर, फिर 1 नंबर रखे बीच में, फिर बीच में 2 नंबर को रखें। देन 10, फिर 11, अब बीच में 3 नंबर्स को रखेंगे, 3 डिफरेंट नंबर्स को। वी हैव टू कीप 3 डिफरेंट नंबर्स इन द मिडिल। देन 15 16, नाउ वी हैव टू कीप 4 डिफरेंट नंबर्स, है ना, 4 डिफरेंट नंबर्स। देन 21, फिर यहाँ हो जाएगा 22, क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, 22, ठीक है। और अबरी हम बीच में कितने नंबर्स को रखेंगे, हाउ मेनी नंबर्स यू हैव टू गिव, 5 नंबर्स। वेरी गुड। अब देखिए, आप लगता समझ गए, पहले एक भी नंबर नहीं रखा हमने, फिर 1 नंबर्स, 2 नंबर्स, 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, अब हम 5 डिफरेंट नंबर्स को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे जो नंबर आएगा वो हमारा नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर होगा आफ्टर 21 के बाद का नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर ये हो जाएगा। फिर उसी तरह इस तरह आप कंटिन्यू करके इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो क्लियर है ना, ये हुआ हमारा ट्रायंगुलर नंबर कैसे फाइंड करें, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट में आज के लिए मैं डिस्कस करूंगा कि द फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर इज, फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा बताइए, 1। फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर इज 1, क्लियर है। और द लास्ट ट्रायंगुलर नंबर इज इन्फिनिटी। वेरी गुड, है ना, इन्फिनाइट तक ये जा रहा है, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। मैं एक बार रैप अप कर देता हूँ, ठीक है। सारा चीज़ हमने क्या किया, कुछ नंबर्स को डॉट पैटर्न में ट्रायंगुलर की तरह सजाने का कोशिश किया। जब हम ट्रायंगुलर के फॉर्म में सजाएं तो हमने देखा कि वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रहा है, मतलब कहने का कि डॉट्स किधर से भी काउंट कीजिए, नंबर ऑफ डॉट्स सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हो गए वो ट्रायंगुलर नंबर कहला गए। रीज़न क्या होगा कि वाई ट्रायंगुलर नंबर्स आर कॉल्ड एज ट्रायंगुलर नंबर, तो कहेंगे कि ट्रायंगुलर नंबर्स आर called as triangular number because when we will arrange them in dot pattern they will form an equilateral triangle। क्लियर है ना, ओके, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ट्रायंगुलर नंबर्स कैसे फाइंड करें, हाउ टू फाइंड द ट्रायंगुलर नंबर्स। तो इसके लिए टू डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला तो डॉट मेथड से आप कर लीजिए, या दूसरा इस शॉर्ट ट्रिक को आजमा लीजिए, ठीक है। लास्ट हमने क्या देखा, फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर और लास्ट ट्रायंगुलर नंबर विल बी इन्फिनिटी। इज इट क्लियर? इतना सारा चीज हमने आज देखा, इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिएगा, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि कहीं भी आए तो आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकें, ठीक ना। कि वाई ट्रायंगुलर नंबर्स आर कॉल्ड एज ट्रायंगुलर, तो लिखेंगे ट्रायंगुलर नंबर्स are called as triangular because when we will arrange the triangular numbers
numbers in dot pattern, then they will form an equilateral triangle. ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल. क्लियर है कि ट्रायंगुलर नंबर्स आर कॉल्ड एज ट्रायंगुलर नंबर्स जो हैं वो ट्रायंगुलर कहलाते हैं, क्योंकि व्हेन वी विल अरेंज दैम यहाँ कर लीजिए. ठीक है, अरेंज द ट्रायंगुलर, नहीं सही है ये, अरेंज द ट्रायंगुलर नंबर्स इन डॉट पैटर्न. जब हम क्या करें कि इस ट्रायंगुलर नंबर्स को डॉट पैटर्न में जब अरेंज करेंगे, सो देन दे विल फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो वो क्या बनाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा. ठीक है, जब हम ट्रायंगुलर नंबर्स के डॉट को डॉट पैटर्न में अरेंज करेंगे, ठीक है, तो ये फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा. इसी कारण से ट्रायंगुलर नंबर्स जो हैं वो ट्रायंगुलर कहलाते हैं. क्लियर है? इज इट ओके? Yes, और एनी डाउट? yes, sir. No, sir, no doubt. Okay, then please note down it.